Today's message is not going to be very long, जो आज का संदेश है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, but it took a lot of time for me to prepare this message. लेकिन इसको तैयार करने में समय वो काफी लगे। Probably I spent more time in preparing this message than any other message. और शायद इस संदेश को तैयार करने में और संदेशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा समय लगा। Because whatever I wanted to share, I put it in the paper. क्योंकि जो भी मैं आपसे बांटना चाह रहा था उसको मैंने लिखा। Then I went through that and deleted some of them, cut some of them. फिर उसमें मैंने फिर उसको देखा, फिर उसमें से कुछ चीजों को मैंने काट दिया। Because I want to say something, but I don't want to hurt people. लेकिन मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि लोगों को चोट लगे। So I had to cut and write and cut and write. It spent a lot of time on it. इसलिए मुझे लिखना पड़ा, फिर मैंने काटा, फिर उसको लिखा और बहुत समय इस पर निकल गया। No, when I was saying there was about 45 years back, I used to work with the telephone department. Telephone. और 45 वर्ष पहले मैं टेलीफोन के डिपार्टमेंट के साथ काम करता था। It is new news for everyone I know. शायद ये सबके लिए एक नई खबर है। Okay, I had a lot of work. This is one of them. काफी कुछ मैंने काम कर रखा है, उसमें से एक ये भी था। So we were on a training field for a year. और हम लोग प्रशिक्षण में थे एक साल के लिए। The duty was to check 2 telephone lines between 2 big cities. और काम था कि 2 बड़े शहरों के बीच में जो टेलीफोन की लाइनें थी उनको हमें चेक करना था। The distance was about 150 kilometers. और 150 किलोमीटर का उसमें दूरी थी। So we had to always stay in the jungle along the telephone line. The small things, big things. और टेंट में हमें जंगलों में रहना पड़ता था अपने टेलीफोनों के साथ में। We walk for 10 kilometers, check the line and come back and stay in the tent. और 10 किलोमीटर चलते थे, लाइन को चेक करते थे और वापस आके अपने टेंट में रहते थे। Then we shift the tent rather than 10 kilometers again. और फिर अपना टेंट लेके अगले 10 किलोमीटर जाते थे, यही काम करते थे। I was the leader of the team. तो जो पूरी टीम थी उसका मैं लीडर था। So one of the rule was that you cannot leave the tent in the night. और उसमें एक नियम ये था कि रात में आप अपने टेंट को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। Because they don't want us going to some villages or city and create problem there. क्योंकि वो चाहते थे कि आप वहां से निकल के किसी गांव में या शहर में जाके वहां पे कोई समस्या ना At 10 o'clock you put off your light and go to sleep. 10 बजे आप लाइट ऑफ करके आप सब सो जाए। But one day some friends wanted to go to a movie. लेकिन एक दिन कुछ मित्र जो थे वो एक फिल्म देखने जाना चाहते थे। Some boys came and asked me, please let's go for a movie near this town. कुछ लड़कों ने कहा कि पास में एक शहर है, वहां पे हम जाके मूवी देखना चाहते हैं। So I took them. तो मैं उनको ले गया। I went there and it was night movie at 11 o'clock and came back at 2:30 in the morning. और रात की वो शो था और करीबन 2:30 बजे रात में सुबह हम लोग लौट के आए। Next day somebody put this matter into the supervisor's ear. और उसके बाद जो सुपरवाइजर थे उन तक ये बात अगले दिन पहुंच गई। So he called all of us and really gave piece of his mind. और फिर उन्होंने आके हम लोग को बहुत सुनाया अगले दिन। He called individually every person and scolded. और अलग-अलग बुला के सबको डांट लगाई। But when he came to me, लेकिन जब मेरी बारी आई, he did not scold me. तो मुझे डांटा नहीं। He just asked one question. एक ने मुझसे एक सवाल पूछा, Are you a Christian? क्या आप एक मसीह हैं? Are you a Christian? क्या आप एक मसीह हैं? Because he was expecting some different from a Christian, something different from a Christian. क्योंकि वो अपेक्षा कर रहे थे कि मसीह होने के नाते इनका जो तरीका कुछ अलग होना चाहिए था। He was looking for some different life from a Christian. वो एक अलग प्रकार का जीवन की अपेक्षा कर रहे थे एक मसीही से। He did not expect a Christian to do that. और उनको ये अपेक्षा नहीं थी कि एक मसीह व्यक्ति ऐसा करेगा। He was a Hindu man. वो एक हिंदू व्यक्ति थे। That question remained with me for a long time. और वो सवाल मेरे साथ बहुत लंबे समय तक मेरे जहन में रहा। Because I knew as a Christian I failed. क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मसीह होने के नाते मैंने उन्हें असफल किया। I even probably I was a stumbling block to him by doing what I did. और शायद मेरे उस कारण से मैं उनके लिए ठोकर का कारण भी बन गया।
No, keeping our testimony outside the world is outside the church is very important. हमारी जो साक्षी है उसको चर्च के बाहर उसको बना के रखना बहुत आवश्यक So है। once upon a time, the people were looking at Christians with respect. एक समय था जब लोग मसीहियों को बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान के साथ देखते थे The people know that Christians live differently. और उनको मालूम था कि जो मसीह लोग हैं वो अलग प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं They expected Christians to live differently also. और उनकी अपेक्षा भी थी कि जो मसीह लोग हैं वो अलग प्रकार का जीवन व्यतीत करते But हैं। sadly today, they don't expect that. लेकिन आज जो है वो ऐसा अपेक्षा अब नहीं करते हैं Because as Christians, we stop living the life outside people expect us to do. क्योंकि अब मसीह हैं तो लेकिन ऐसा जीवन हम व्यतीत नहीं करते हैं जैसा हमसे अपेक्षित है। We live like them. हम उन्हीं की तरह जीते हैं There's nothing different the way we live. और कोई भी बात अलग नहीं है हमारे जीवनों में। As Christians, we lost our testimony. और एक मसीह होने के नाते मसीह होते हुए भी हमने अपनी साक्षी को इस संसार में खो दिया। So when we lose testimony, when we disobey God. हम अपनी साक्षी जब खोते हैं जब परमेश्वर के हम आदेश का पालन नहीं करते हैं। Today, I would like to look at two different verses and how they disobeyed God and lost their testimony. और आज हम दो व्यक्तियों को देखना चाहेंगे कैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपनी साक्षी को खो दिया। Please let the scripture portion that we read. जो आज का पाठ पढ़ा गया था उसको निकाल दीजिए। Numbers chapter 2. गिनती और उसका 20वां अध्याय। So Moses had a great relation with God. और मूसा की एक बहुत अच्छा संबंध था परमेश्वर के साथ। The Bible says, Lord knew Moses face to face. Knew Moses. और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मूसा को ये लोग आमने सामने लोग जानते थे। The Lord spoke to Moses more than any other person. परमेश्वर ने मूसा के साथ सबसे ज्यादा बातचीत करी। If you read Exodus and Deuteronomy, अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन में तो हम देखेंगे this particular sentence comes again and again. तो ये जो वाक्य है ये बार बार आता है। It says, the Lord said to Moses. और ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा। It comes about 137 times in those three books. और उन 3 पुस्तकों में 137 बार ये वाक्य आता है। That much God spoke to Moses. इतना परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी। God spoke to him face to face. परमेश्वर ने आमने सामने मूसा से बातचीत करी। God did so many miracles through Moses. और परमेश्वर ने कितने आश्चर्य कर्म किए मूसा के द्वारा। God also gave a great testimony about Moses. और परमेश्वर ने मूसा के बारे में भी बहुत अच्छी बातें बताई। Number 13 verse 7 or 8 he said, Moses is faithful in all their houses. और गिनती 13 में परमेश्वर ने कहा कि मूसा जो है वो पूरे घराने में सबसे ज्यादा विश्वास योग्य है। Someone read please verse 7. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod and gather the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak thee unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water, 13 and thou shalt give the water out of the rock. So thou shalt give the congregation and the beasts drink. तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। So he had great relationship with God. उसका बहुत अच्छा संबंध था परमेश्वर के साथ। God gave a very good testimony about him. उसके बाद में परमेश्वर ने बहुत अच्छी साक्षी दी थी। But he disobeyed and spoiled his testimony. लेकिन उसने आज्ञा का पालन ना करके अपनी साक्षी को उसने बर्बाद किया। So when the Israelites came from Egypt to Canaan, और जब इस्राएल के लोग मिस्र से कनान आए थे, they arrived the place of Zin. तो जिन वाली रेगिस्तान में वो आए। They stayed in a place called Kadesh, और केदेश स्थान पे वो लोग रहे and there was no water for the community. और वहां पे उन लोगों के लिए पानी नहीं था। As usual, people started fighting against Moses. और जैसा कि होता है वो मूसा के खिलाफ सब लड़ने झगड़ने लगे। So Moses and Aaron went and fell prostrate before God. तो मूसा और हराम जो थे वो जाके परमेश्वर के सामने घुटनों पे गिर गए। Then the Lord said, और फिर परमेश्वर ने कहा take the staff with you, कि अपनी लाठी ले ले, you and your brother Aaron, तुम और तुम्हारा भाई हारून, and go speak to the rock.
और जाके चट्टान से बात कर। God said, speak to them. परमेश्वर ने कहा जाके चट्टान से बात कर। He took the staff and then went along with Aaron, तो उसने अपनी लाठी ली और हारून के साथ गया, called all the people. सब लोगों को बुला लिया And in front of them, he said, you rebels, must we bring water from the rock, and struck the rock. और उसने कहा कि हे दंगा करने वालों, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? No, he made 3 huge mistakes on that place. और यहाँ पर उसने 3 बड़ी गलतियां की। God was not very angry with people at that point. उस समय पर परमेश्वर लोगों से कोई विशेष क्रोधित नहीं थे। God understood their problem. परमेश्वर उनकी समस्या को समझ रहे थे। So he lovingly told them, go and speak to the rock and the water will come out. तो उसने कहा कि जाके उस चट्टान से बात करो और वहां से पानी मिल जाए। God was not angry, but Moses was angry. तो वहां पर परमेश्वर क्रोधित नहीं थे, लेकिन मूसा वहां पे क्रोधित हो रहा था। God gave a loving solution. परमेश्वर ने प्रेम से भर के एक वहां पे उनको एक तरीका बताया, And Moses turned to into an angry solution. लेकिन मूसा ने उसको एक क्रोध में परिवर्तन कर दिया। Yes, he called them, you rebels. क्योंकि उसने कहा कि तुम दंगा करने वाले। And then God asked him to speak to the rock. और फिर परमेश्वर ने कहा कि चट्टान से बात करो। But he spoke to the people and struck the rock. लेकिन उसने लोगों से बात करी और फिर चट्टान पे उसने अपना लाठी मारी। God did not ask him to speak to people anything. परमेश्वर ने उससे नहीं बोला था कि तुमको लोगों से बात करनी। He said, go and speak to the rock and the water will come out. परमेश्वर ने कहा था कि जाके चट्टान से बात करो और पानी निकल जाए। And he tried to turn people's focus from God to himself. और उसके करने से ऐसा हुआ कि लोगों का जो ध्यान था वो परमेश्वर से हटके उसके ऊपर आ गया। He said, must we bring water from this rock? Must we bring water from the rock? कि क्या इसी चट्टान से पानी निकालना होगा? As if he had power to bring the water from the rock. जैसे कि हमारे पास सामर्थ्य है कि हम चट्टान से पानी निकाल सकते हैं। So he betrayed the trust God had placed on him. और जो भरोसा परमेश्वर ने उस पर रखा था मूसा के ऊपर, उसने उसको नहीं पूरा किया। Probably he took the relationship with the deep relationship with God for granted. और शायद उसका परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध था, उसको उसने हल्के में लिया। No, because chapter 13 he says, my servant Moses is faithful in all my house. क्योंकि 13वें पद में परमेश्वर ने ये कहा था कि जो मेरा सेवक मूसा है वो मेरे पूरे घराने में सबसे ज्यादा विश्वास योग्य है। But at that moment he broke that faith with God. लेकिन उस पल में उसने उस विश्वास को तोड़ दिया। Somebody read this Deuteronomy chapter 32 verse 51. Deuteronomy chapter 32 verse 51. This is because both of you broke faith with me in the presence of the Israelites at the waters of Meribah Kadesh in the desert of Zin, and because you did not uphold my holiness among the Israelites. इस कारण ये है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। He says, you broke faith with me. और लिखा हुआ है कि तुमने मेरा अपराध किया। He says, I trusted you so much. I thought you were so faithful, but you broke faith. और कहा कि मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरे विरुद्ध अपराध किया। Someone read please the number chapter 20 verse 12. The portion that we read today. And the Lord spake unto Moses and Aaron, because ye believed me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation to the land which I have given you. परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। It says, you did not trust in me. और कहता है कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया You did not honor me as holy. और तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। You did not honor me as holy in the sight of the Israelites. तुमने इस्राएलियों के सामने मुझे पवित्र नहीं जाना। You did not honor me in the sight of the Israelites. That was the main accusation. इस्राएलियों के सामने तुमने मेरा आदर नहीं किया। That was the main accusation God had against Moses. और मूसा के विरोध में परमेश्वर का सबसे खास जो बात थी वो ये,
So whenever we disobey God, we dishonor God. जब हम परमेश्वर की बात का अनादर करते हैं या आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो फिर हम उसका अनादर करते हैं। We dishonor God in the sight of other people. औरों की दृष्टि में हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। No, this is what we have been doing as Christians in our nation. और अपने देश में एक मसीह के बतौर ऐसा ही कुछ हम लोग कर रहे हैं। That is one of the reasons people have no respect for Christians or Christianity. और शायद यही कारण है कि मसीहत के लिए, मसीहों के लिए अब लोगों के हृदय में कोई आदर नहीं। We dishonor Him through our behavior. और अपने बर्ताव के द्वारा हम उसका अनादर करते हैं। Every Christian should feel that what he has done is wrong. हर मसीह को ये महसूस होना चाहिए कि जो उसका बर्ताव है वो गलत है। Every Christian should realize that. और हर मसीह को इस बात का एहसास होना In चाहिए। my day-to-day life, when I disobey God, I dishonor God in the sight of other people. और रोजमर्रा के जीवन में जब मैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, तो औरों की दृष्टि में मैं उसका अनादर करता हूँ। Don't dishonor God by your behavior. और अपने बर्ताव के द्वारा परमेश्वर का अनादर ना करें। Our behavior should always lift up God. जो हमारा बर्ताव है उसे परमेश्वर का नाम ऊंचा उठना चाहिए। People should look at our life, look at the way we behave, and lift up God's name. और हमारा तो जीवन देख के लोगों को होना चाहिए कि परमेश्वर का नाम ऊंचा उठने का। If you have, we all have other religious friends with us. हमारे बहुत से मित्र हैं जो दूसरे विश्वासों के हैं, And in front of them, our behavior should be really exemplary. और उनके सामने खास तौर से जो हमारा मसीह विश्वास है वो उदाहरण होना चाहिए। We don't do what they do. हम ऐसा नहीं करते जैसा वो लोग करते। Let them know that you are a Christian and you are a different person. तो वो जान ले कि आप मसीह हैं और आप औरों से अलग हैं। You don't need to act differently. कोई आवश्यकता नहीं कि आप अलग प्रकार से आपका बर्ताव होने होए, Be different. लेकिन बस अलग प्रकार से होना चाहिए। They're both are different. But there are differences in both. दोनों बातों में You फर्क can है। act differently with people, हो सकता है कि इस प्रकार का हम अभिनय करें कि हम अलग हैं, but you can be different. लेकिन हम अलग हो सकते हैं। God wants you to be different परमेश्वर चाहता है कि हम अलग हों, in the sight of other people. औरों की दृष्टि में हम अलग हों। That will lift up God's name. उससे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। Do you know what is the consequences of what Moses did? और जो जैसा मूसा ने किया, अब उसका नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं? He lost the opportunity to enter into Canaan. और कनान देश में प्रवेश करने का जो अवसर था वो उसने खो दिया। That was God's punishment for him. ये परमेश्वर की सजा थी उसके। No, he waited 40 years 40 वर्ष उसने प्रतीक्षा करी थी and went through a lot of hardship and problems and difficulties. और बहुत कठिनाइयों से, विषम परिस्थितियों से वो गुजरा था He was waiting to just enter into Canaan. और रुका हुआ था कि कनान में कब वो जाने पाएगा। And he lost something he wanted so bad. और एक बात जो उसको इतना ज्यादा चाहिए थी, उस चीज को उसने खो दिया। And God, he went back to God again and again. Please allow me. और वो बार बार परमेश्वर के पास वापस गए, कृपया मुझे जाने दीजिए। You know what did God say? आपको मालूम परमेश्वर ने क्या बोला? Can you read Deuteronomy chapter 3 verse 26? Deuteronomy chapter 3 verse 26. But because of you, the Lord was angry with me and would not listen to me. That is enough, the Lord said. Do not speak to me anymore about this matter. 26. 23. परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे क्रोधित था, उसने मेरी क्षमा किया था। और यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय पर मुझसे फिर कुछ न करें। That's enough. Do not speak about this matter anymore. परमेश्वर ने कहा अब इस विषय पर मुझसे और बात ना करना। God said you cannot. परमेश्वर ने कहा कि तुम नहीं जा सकते। The second consequence was और जो दूसरा नतीजा था वो ये हुआ the people lost a great leader. कि लोगों ने एक बहुत अच्छे अगुवा को भी खो दिया। God said, You cannot go, so you anoint Joshua in your place to lead the people into Canaan. और कहा कि तुम नहीं जा सकते, तो अब यहोशू को अभिषेक करो कि यहोशू जो है वो लोगों को लेकर कनान में जाएगा। Joshua took over from Moses. और फिर उस क्षण से
यहोशू ने जो थी कमान संभाली मूसा से। But you can never compare Moses with Joshua. लेकिन आप मूसा और यहोशू में कोई तुलना नहीं कर सकते। Now Moses was able to talk to God face to face, मूसा तो आमने सामने परमेश्वर से बातचीत करता था, and he was able to bring whatever God told him to people. और जो भी परमेश्वर कहते थे उन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाता भी था। He had a very close relationship with God. उसका परमेश्वर के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। But Joshua had to get decision from God through Eliezer the priest. लेकिन एलियाजर जो याजक था उसके द्वारा परमेश्वर उससे बात करता था यहोशू से, Not directly, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, not face to face. आमने सामने नहीं। So, but Joshua had to go through the priest. यहोशू जो था उसको याजक के माध्यम से परमेश्वर से बातचीत करनी। So when leaders and you yourself disobey God, that affects your family, your community, the place where you live. जब अगुवे या हम लोग में से कोई भी जब हम परमेश्वर का बातों को नहीं मानते हैं तो उससे परिवार में और समुदाय में सब पे असर पड़ता है। When you disobey God, you spoil your testimony. Remember that. और जब परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करते हैं तो हमारी साक्षी भी हमारी When you spoil your testimony, other people see you और जब हमारी साक्षी खराब होती है तो लोग हमें देखते हैं and they lose you. Lose you. और फिर वो हमसे दूर हो जाते हैं। The second person who disobeyed God and spoiled his testimony is well-known person. और एक दूसरा व्यक्ति जिसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना और साक्षी को उसने खराब किया, वो एक बहुत जाना पहचाना व्यक्ति है। Can you guess who it is? David. और वो था दाऊद। The second person disobeyed God was David. और दूसरा व्यक्ति जो आज हमारे सामने है वो है दाऊद। Now God called David a man after my own heart. और परमेश्वर ने कहा कि ये जो दाऊद है वो मेरे हृदय से प्रिय व्यक्ति है। He called him David, my servant. Very closely called him, very lovingly called him David, my servant. परमेश्वर ने कहा कि दाऊद जो मेरा सेवक है। And even now we read his psalms. और आज भी उसके भजनों को हम पढ़ते हैं। God made him to write numerous psalms. It is a blessing to us till now. और परमेश्वर ने उसके द्वारा कितने भजन गीतों को लिखा, आज भी हमारे लिए आशीष का कारण है। Whenever we read those psalms, we feel blessed. और आज भी जब उन भजनों को पढ़ते हैं तो हमें आशीष प्राप्त होती है। God protected him from Saul, परमेश्वर ने उसको सौल से बचाया, took him from going behind the sheep and goats and made him as a king. और भेड़ बकरियों को जो चरवाहा था वहां से उठाकर उसको राजा बनाया। He made him king over the whole Israel. पूरे इजराइल के ऊपर उसको राजा बनाया, Gave you so many victories. और उसको इतनी विजय हासिल हुई। And David did have a close relationship with God. और दाऊद का अच्छा घनिष्ठ संबंध था परमेश्वर, He had a very strong faith on God. और परमेश्वर में बहुत मजबूत विश्वास भी था उसका। He had such a faith that he was able to kill Goliath as a small boy. और एक छोटे बालक के रूप में भी उसने इतना विश्वास था कि गोलियत को उसने हराया। Even as a small boy, he said, I come in the name of my God. और छोटा बालक था, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के नाम में तुम्हारे पास आता हूं। That's the kind of faith he had. इस प्रकार का विश्वास उसका था, And he also had a clean record. और उसका जो उसका जीवन था वो भी एकदम साफ था। I'm not saying that he never sinned. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने कभी पाप नहीं किया, I'm saying he had a clean record. That means every time he sinned, he went back to God and confessed it. लेकिन उसका जीवन साफ था, पारदर्शी था। जब भी उसने कुछ गलत किया तो वो हमेशा परमेश्वर के पास गया क्षमा मांगा। There was nothing that he did not confess to God. कोई ऐसी बात नहीं थी जो कभी उसने परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं करी। Even but he fell into a great sin. लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े पाप में पड़ गया, He committed both adultery and murder. और उसने हत्या भी करी और व्यभिचार भी किया। You know all this. All of you know the story. और वो जो घटनाएं थी उनको आप जानते हैं, So I'm not going deep into that story. तो उस घटना में मैं और गहराई में नहीं जाऊंगा। But we'll see what happened after that he did it. लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ जब उसने ऐसा किया। He committed the sin, but he did not confess to God. उसने पाप किया लेकिन परमेश्वर के सामने उसका पश्चाताप नहीं किया। Almost a year, she gave baby to the child also. और एक साल के बाद एक बच्चा भी उत्पन्न हुआ बच्ची। But he kept hiding it. He never came forward to God, tell God, Lord, I did it, please forgive me. He didn't do that. लेकिन वो छुपा रहा, कभी भी परमेश्वर के सामने उस सारी बात को लेके नहीं आया। Ultimately, God had to bring his prophet Nathan to talk to David. और अंत में परमेश्वर ने अपने नबी नेथन को लेके जाके दाऊद से बात करनी पड़ी। Someone read please 2 Samuel chapter 12 verses 7 to 9. 2 Samuel
chapter 12, verses 7 to 9. Then Nathan said to David, "You are the man. This is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave you master's house to you, and your master's wives into your arms. I gave you all Israel and Judah, and if all this had been too little, I would have given you even more. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite and the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of Ammonite. Now therefore the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. This is what the Lord says, out of your own household I am going to bring calamity on you. Before your very eyes I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will sleep with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. And David said to Nathan, I have sinned. But enough. Yeah. Yes, indeed, please. तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से मिटाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर तू वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मारवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, और तूने मुझे तुझ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। That's enough. So he says, I anointed you as a king over Israel. और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरा अभिषेक किया था I- राजा के रूप में इस्राएलियों को, I delivered you out of the hands of the Saul. और मैंने तुझे साउल के हाथ से भी बचाया, I gave you your master's house and everything in it. और तुम्हारे स्वामी का पूरा घराना भी तुझे मैंने दे दिया, I gave you the house of Israel and Judah. और इजराइल और यहूदा के घराने भी तुझे दे दिए। He says, if it is not enough, I would have given you more. और कहता है, अगर ये भी पर्याप्त ना होता तो मैं तुम्हें और दे देता। He says, why did you disobey my word and dishonor me? लेकिन क्यों फिर भी तूने मेरी बात थी, मेरा वचन जो मैंने कहा था उसका तूने क्यों उल्लंघन किया और मेरा तूने अनादर किया? Why did you despise me? क्यों तूने मुझे तुच्छ जाना? So you see, you can feel a grief there. यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर को दुख था, God was grieved the sin what David committed. जो पाप दाऊद ने किया था उससे परमेश्वर को दुख था। He says, why did you do it? उसने कहा कि क्यों तूने ऐसा I trusted you so much. मैंने तुझ पे इतना भरोसा, I loved you so much. मैंने तुझसे इतना प्रेम किया, I was pleased with you so much. मैं तुझसे इतना प्रसन्न था, But why did you do it? लेकिन तूने क्यों ऐसा, Why did you despise me and disobey my word? क्यों तूने मेरी बातों को तुच्छ जाना और मेरा अनादर किया? And you disobeyed my word and disobeyed me and took Uriah's wife. और मेरे शब्दों का तूने अनादर किया और उरिया की पत्नी को तूने ले लिया। The accusation is, by doing that, you made enemies of God show utter contempt for me. और जो खिलाफ उसके जो इल्जाम था वो ये था कि तूने ऐसा करा तो उसकी वजह से जो परमेश्वर के जो शत्रु हैं उनके सामने तूने दिखाया कि तू परमेश्वर के कैसे विरोध में जाता है। By doing this, you put me down in front of my enemies. That's what God says. ऐसा करने से जो मेरे शत्रु हैं उनके सामने तूने मुझे नीचा दिखाया। Every time when we despise God, we put our God in front of other people. और जब भी हम लोग इस प्रकार से परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं, बर्ताव करते हैं, तो औरों के सामने प्रभु को नीचा दिखाते हैं। Every time we despise and disobey God, we put God down in front of other people who do not know God. और हमेशा जब हम जब परमेश्वर की बातों का अनादर करते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते, तो हम औरों के सामने जो नहीं जानते हैं परमेश्वर को, हम अपने प्रभु को नीचा दिखाते हैं। No, today in our country, there is utter contempt for Christianity and Christian God. आज हमारे देश में जो मसीह है और जो मसीहत है उसके प्रति लोग जो है वो बिल्कुल भी हमें कुछ नहीं समझते। We are the reason for it. उसका कारण हम We do not live a life that glorifies God. हमने ऐसा जीवन व्यतीत नहीं किया जिससे प्रभु को भिखाना। Through our life, we put him down. अपने जीवनों की वजह से हमने प्रभु को नीचा दिखाया। I see
we know many Christians neither have desire nor the strength to live differently. और मैं देखता हूँ कि बहुत से मसीह हैं जिनमें ना इच्छा है और ना वो चाहते हैं कि वो एक अलग जीवन व्यतीत We just live the way we want. That's it. जैसे हम चाहते हैं अपना जीवन वैसे व्यतीत करते हैं We call ourselves Christians और अपने आप को मसीह बोलते हैं and we live like everyone else. और जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे हम भी रहते हैं। God doesn't want that. परमेश्वर ये नहीं चाहते Every time we live a life, that kind of life, we put God down. और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो प्रभु को हम नीचा दिखाते हैं। We have His name, Christian. We have name, हमारे पास प्रभु का मसीह नाम है but we don't have His life in us. लेकिन उसका जीवन नहीं है हमारे अंदर। When we have name, we should have His life also in us. अगर उसका नाम है तो फिर उसका जीवन भी हमारे अंदर होना चाहिए No, it's a very, very sad thing. और ये बहुत दुख की बात है। It's a sad thing. There are people who are trying to reach out to this nation, other people, with the gospel, a good news. और लोग हैं जो वचन के साथ जो है वो औरों तक पहुंचना चाहते हैं हमारे देश में One side, the people are working very hard to reach out to this nation with the gospel. और एक तरफ तो ऐसे लोग भी हैं जो वचन के साथ जो लोग अधिकार में हैं, उन तक प्रभु की बातों को पहुंचाना चाहते हैं But on the other side, there are people who already have the gospel, live differently. लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वचन है लेकिन उनका जीवन इस प्रकार का है They do not live according to the good news they received. और जो एक सुसमाचार जो उनको मिला है उसके अनुसार उनका जीवन नहीं है So the outside people don't read your Bible. जो बाहर के लोग हैं वो हमारे वचन को नहीं पढ़ते They read you. लेकिन वो आपको पढ़ते हैं They look only at your life. वो आपके जीवन को देखते हैं There are people trying to preach the gospel to bring people to Christ. और ऐसे लोग हैं जो प्रचार करते हैं ताकि लोग जो है वो प्रभु यीशु के पास आने But पाएं। when we as Christian, when we live differently, wrongly, why should they come? लेकिन जब हम मसीह अपने आप को बोलते हैं और गलत जीवन व्यतीत करते हैं तो वो क्यों आए प्रभु He says, why should I come to your God? तो वो कहते हैं क्यों हम आए तुम्हारे पास Your people live like me only. तुम्हारे लोग भी तो हमारी तरह रहते हैं Why should I believe your God when He cannot change your people's तो life? तुम्हारे परमेश्वर में क्यों भरोसा करें जब वो तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकते? We as Christians have put down God's name in this country. हमने अपने देश में मसीह हम हैं लेकिन हमने प्रभु के नाम को नीचा गिराया है That has to change. इस बात को बदलना है That has to change when we individually, when we change. और जब हम व्यक्तिगत रूप से बदलेंगे तब ये बात बदलेगी। No, there was accusation God had against David. You put my name down in front of my enemies. और ये आरोप परमेश्वर ने दाऊद पर लगाया कि तुमने औरों के सामने मेरे नाम को नीचा गिराया। The second consequence of his action was और जो दूसरा नतीजा हुआ उसके सारे का हुआ he was punished very severely. कि बहुत उसको बहुत बड़ी सजा दी गई God said the sword will never leave you. और परमेश्वर कहा कि तेरे घराने से तलवार जो है वो कभी दूर ना होगी। Now at that time God had given the rest. God had given rest. God had given him rest. उस वक्त परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया था But God now says there will be no more rest for you. You will have to keep fighting all through your life. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अब वो विश्राम का समय खत्म हो गया है अब तुमने लड़ना ही पड़ेगा हमेशा। What you did in secret, I will do it in broad daylight. और जो बात तुमने छुप के करी थी उसको मैं दिन दहाड़े रोशनी में करूंगा। And the son that was born to you and Bathsheba will die. और जो बेटा तुम्हारे और बत्शेबा के उत्पन्न हुआ है वो मर जाएगा। Of course, all this happened. और ये सब हुआ And the third consequence was और जो तीसरा नतीजा था वो ये, that he was a stumbling block to his own children. अपने ही बच्चों के लिए वो ठोकर का कारण बना। Remember that when you disobey God, when you dishonor God, you are going to be a stumbling block to your children. याद रखिए अगर आप परमेश्वर का अनादर करेंगे बातों को नहीं मानेंगे तो अपने ही बच्चों के लिए Don't आप ठोकर का कारण बनेंगे। Don't think about outside world. दूसरे बाहर के लोगों के बारे में मत सोचिए, Your own family, अपने परिवार के बारे में your सोचिए। children will look at you आपके बच्चे आपको देखेंगे and they will follow your action. और वो जो आप करते हैं वैसे वो भी करेंगे। That is what David's children followed his action. और दाऊद के बच्चों ने दाऊद ने जैसा किया वैसे किया। His son Amnon, अमनोन जो उसका बेटा था he defiled his own stepsister. उसने अपनी की जो उसकी जो बहन थी Defiled. सौतेली बहन उसके साथ उसने गलत कार्य किया। And his son Absalom defiled his own father's concubines. और जो उसका बेटा दूसरा था अब्सलोम उसने अपने ही जो बाप था उसकी जो दूसरी पत्नियां थी उसके साथ उसने ऐसा गलत किया। And his son Solomon और उसका बेटा सुलेमान had 700 wives and 300 concubines. उसकी 700 पत्नियां और 300 रखे थे। You know, this Bible says David acquired more wives and concubines once he became the king of Israel.
David. और वचन लिखा है कि जब वो राजा बन गया इस्राएल का, तब और पत्नियां रखे ने सबसे ज्यादा दाऊद के पास। So he just followed his son, Solomon followed his father. तो जो सुलेमान था उसने भी वही रास्ते पे चला जिस पे दाऊद था, For his one mistake was a stumbling block to his children. और एक गलती से वो अपने बच्चों के लिए खुद ठोकर करता था। He lost his testimony in front of his children. अपने बच्चों के सामने उसने अपनी साक्षी को खो दिया, And he lost his testimony in the sight of Joab. और जोआब की दृष्टि में भी उसने अपनी साक्षी को खो दिया। Joab was his army commander. जो जोआब था वो उसके सेना का सेनापति था, And he used him to kill Uriah. और उसने उसका प्रयोग किया उरिया को मरवाने के लिए। If you read later period, अगर आप पढ़े बाद में क्या हुआ, Joab did not have the respect for David. जोआब था उसके पास, उसने दाऊद का आदर करना बंद कर दिया था, Because David lost his testimony by disobeying and despising God. क्योंकि परमेश्वर की बातों को तुच्छ जान के करके उसने आदर खो दिया। He did only one mistake, but there are so many consequences. एक गलती की वजह से उसके कितने परिणाम हैं। God forgave him. परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, God forgave him and took away all his sins. उसके सारे पापों को परमेश्वर ने उससे अलग कर दिया, But the damages have been done. लेकिन जो नुकसान था वो हो चुका। Even after thousands of years, we are talking about it today. आज भी हजारों वर्षों के बाद हम उसकी बात कर रहे हैं, God made sure to put it in the Bible और परमेश्वर ने निर्धारित किया कि ये बात भी वचन में लिखी जाए, to take warning. ताकि इससे हम चेतावनी We लें, should read and take warning. ताकि पढ़ें और चेतावनी लें We avoid despising God in our life. कि अपने जीवन और परमेश्वर की बातों को कुछ ना जाने और उसका आदर करें। You know, it's very, very important for us to keep our testimony in the outside world. अपनी साक्षी को लोगों के सामने बीच में बना के रखना बहुत आवश्यक Consciously avoid doing anything wrong. है, और इस बात को ध्यान में रखें और गलत चीज जो है, गलत बातें जो है उसको ना करें। Consciously avoid doing anything that will put God's name down. इस बात का ध्यान रखें आंतरिक रूप से कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे परमेश्वर का नाम नीचे गिरने पाए। And what are the ways in which we do these things? कौन से वो तरीके हैं जिससे हम ये काम करते हैं? What are the ways in which we lose our testimonies? वो कौन सी बातें हैं जिससे हमारा जो साक्षी है वो खो जाती है? No, when you disobey God, you definitely dishonor God and lose your testimony. जब हम परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करते हैं तो अवश्य ही हम अपनी साक्षी को खोते हैं। And there are things that are not sinful by nature, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने आप में पाप में नहीं होती हैं, but still you lose your testimony when you do this. लेकिन जब उनको करते हैं तब भी हम अपनी साक्षी को खोते No, हैं। we are all in Facebook. हम लोग सब फेसबुक पे हैं, I have seen so many postings on Facebook. और फेसबुक पे मैं बहुत से जो पोस्ट हैं वो देखता हूँ। So some of us don't think before posting something in the Facebook. और फेसबुक पे कभी कभी कुछ लिखने से पहले हम लोग कभी कुछ सोचते नहीं। I have even seen Christians posting horoscope in their Facebook. मैंने तो मसीहों को जो राशि फल है वो भी फेसबुक में मसीहों को पोस्ट करते हुए देखा But है। I don't understand how can you do that. मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसे कर सकते But हैं, it's not biblical. क्योंकि ये वचन पर आधारित नहीं है। So we like something, so we just put it there. कुछ हमें अच्छा लगा हमने बस डाल दिया, There are so many quotations which is not biblical, but we still put it there in the Facebook. और इतनी कहावतें हैं जो वचन पर आधारित नहीं है, उन कहावतों को हम डाल देते हैं। It is not a sin, पाप नहीं है, but there are people who will know, okay, this person is like this. लेकिन बाकी लोग ये सोचेंगे अच्छा ये व्यक्ति ऐसा ही। No, for other religious people, it doesn't matter. He thinks, okay, he's like me. जो दूसरे विश्वास के लोग हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहेंगे हाँ ये भी हमारी तरह है। But for other Christian will think, hey, he's doing this. You are a stumbling block to other Christians. बट जो दूसरे विश्वासी लोग हैं उनके लिए आप ठोकर का कारण है, वो कहेंगे कि ये व्यक्ति कैसे ऐसे जीवन व्यतीत कर सकता है। No, you lose your testimony by posting unnecessary things in the Facebook. और अनावश्यक बातों को जब पोस्ट करते हैं उससे भी हमारी साक्षी पर नुकसान होता है। I am on Facebook, of course. मैं भी फेसबुक पर Of course, I rarely go there और मैं बहुत ही कभी कभी करता हूँ and rarely post anything there. और शायद ही कभी कुछ पोस्ट भी करता हूँ। Be careful what you post in your social media. और जो आपका सोशल मीडिया उस पर आप क्या लिखते हैं पोस्ट करते हैं उसका ध्यान रखिए। Yes, you will be either a stumbling block to somebody, या तो आप किसी के ठोकर का कारण बन जाएंगे and you will also spoil your testimony. और आप अपनी साक्षी को भी खराब करेंगे। So somebody read please 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Chapter 10 verse 23. 1 Corinthians 10.
have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. Yeah. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Yeah, that's it. Yeah. What? 23. 23. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। No, everything is permissible, but it's not constructive. तो मेरे लिए चीजें जो है वो उचित तो हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं। And don't put something which is not helping anyone. और ऐसी बात जिससे किसी का कुछ फायदा नहीं है, ऐसी बात मत लाइए। Always look at somebody else's benefit. और अगले दूसरे व्यक्ति को क्या लाभ हो सकता है ये। I'm not just talking about Facebook, even other ways. मैं सिर्फ फेसबुक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी बातों की Always try to keep your testimony. हमेशा अपने साक्षी को बना के रखें, Obey God. परमेश्वर की बातों का पालन करें। Be a Christian through your life. अपने जीवन के द्वारा मसीह बनिए, Keep your testimony अपने साक्षी को बनाते रखिए and lift God's name at all the times. और परमेश्वर का नाम आपके द्वारा ऊंचा उठाया जाए हर परिस्थितियों में। Never give chance to anybody to put your God down. आप किसी को मौका मत दीजिए कि कभी आपके परमेश्वर को कोई नीचा देखने वाला। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक सुंदर तरीके से और शक्तिशाली तरीके से आज हमसे बातचीत करी। थैंक यू लॉर्ड दैट इन अ ब्यूटीफुल yet powerful way you have spoken to each one of us. Lord, we pray this morning that you will help all of us to introspect. प्रभु जी, आज हम और पूरे हफ्ते हम इस संदेश के माध्यम से प्रभु जी हम अपने जीवनों का स्वयं विश्लेषण करने पाए। Help us Lord to look into our lifestyle, to look into our beliefs and our actions. प्रभु जी, हमारा जीवन का तौर तरीका, हम किन बातों पर विश्वास करते हैं और कैसे हम औरों के सामने अपना बर्ताव करते हैं। Lord, help us to look into all these things. Lord, help us to make sure that we are always found obedient in your sight. प्रभु जी, हमेशा हम आपकी दृष्टि में आपके आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बने। Help us Lord that if there's anything that is not right, help us Lord to bring it before you and seek your pardon. प्रभु जी, कोई भी चीज हमारे जीवन में सही नहीं है, गलत है, प्रभु जी हम आपके सामने लाएं और आपके क्षमा को प्राप्त करने पाए। Help us Lord not to take this lightly. प्रभु जी, इस बात को हम हल्के में ना लें। Help us Lord to build a deep relationship with you and always be obedient to you. प्रभु जी, आपके साथ एक गहराई से हमारा संबंध बनने पाए परमेश्वर, और हम आपका आज्ञाकारी बने आपके और आपके आज्ञा का पालन करें। We ask this in Jesus' name. Amen. In